ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। उन्होंने बोला बेटा आपको कोई भी नहीं है इसलिए मैं तेरे को नहीं रख सकता, इस तरह से बोल करके उन्होंने मेरे को अगले या दुगले दिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। तेरा भाई है ना इधर गुरप्रीत, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल जिंदगी में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। जिथे मां जम्मन वाली बाहरों जिंदा ला के अपने जिंदगी दे विच अगले सफर ते चले गई किसी होर दे नाल। जिवें वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये राजकुमार ते जसवीर, ये बच्चे दोनों ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट ने, BRTC दे। साडे नाल 2016 तो जुड़े हुए ने बच्चे, अटैच ने। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ BRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ BRT ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਡੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਗੇਮਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਵੀਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤ? मैं दफ्तरी दी पोस्ट। ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਬਰੇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜਸਵੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੌਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੌਲ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਟੋ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪੌਲ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੌਲ? जन्म तो चंडीगढ़ में। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? उसके बाद में जी अलग अलग संस्थाओं में रहा हूँ मैं। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? मम्मी पापा तो पता नहीं, पर मेरी जो मम्मी है पहले वो मेरे को ताले में बंद करके चली गई, कहाँ चली गई थी बेटा? कमरे के अंदर। नहीं, चंडीगढ़ में ही? हाँ, चंडीगढ़ में। अच्छा, कमरा मतलब रूम रेंट पे था या क्या घर था? रेंट पे। रेंट पे रहते थे। और मम्मी ताला लगा के कहाँ चली गई थी? किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। और फिर तेरे को किसने निकाला बाहर? कल्लू नाम के आदमी ने। ओके, उन कमरे में से उसने निकाला कर? हाँ जी, ताला तोड़ के, मेरे रोने की आवाज़ सुन के। ओके, फिर उसने क्या किया बेटा? उसने मेरे से पूछा कि डैडी कहाँ है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, पर मम्मी चली गई किसी के साथ में। ठीक है, तो फिर बेटा कल्लू ने क्या किया बेटा फिर? जी, कल्लू ने मेरे को निकाल दिया कमरे से। उसके बाद में दोपहर में डैडी भी आ गए थे। डैडी ने पूछा मम्मी कहाँ पर है? हाँ, मैंने कहा कि पापा किसी के साथ में चली गई। ठीक है। फिर मेरे पापा जी ने भी मेरे को 2-3 दिन अपने साथ रखा। फिर उन्होंने बोला बेटा अब तो कोई भी नहीं है इसलिए मैं तेरे को नहीं रख सकता, इस तरह से बोल करके उन्होंने मेरे को अगले या दुगले दिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। ओके, तेरे को सारी चीजें याद है? कितना बड़ा था तू? जी ज़्यादा बड़ा तो नहीं था मैं जी, 4-5 साल का था उस समय। वो बातें तेरे को याद है सब?
ठीक है। और हरिद्वार स्टेशन पे जब तेरे को छोड़ा उन्होंने, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद में मेरे को कोई भिक्षक लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, जो सड़क पे घूमते रहते हैं, जी। उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया उनसे। फिर मेरे को दूसरे ने ले लिया अपने हाथ में। उस समय मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि किससे क्या बोलना है करके। फिर उसके बाद में एक और बाबा है जिनका नाम रामदास है, उन्होंने मेरे को ले लिया और वो ले जाकर राजस्थान अलवर एक वहाँ पे इंजॉय है, मतलब संस्था है कोई, वहाँ पे ले गए वो मेरे को। फिर मैं वहाँ से दिल्ली में एक और आश्रम है कश्मीरी गेट के पास, मैं वहाँ पे भी मेरे को डाल दिया उन्होंने। अलवर से फिर दिल्ली चले गए तुम? हाँ जी। दिल्ली आश्रम में डाल दिया। हाँ जी। तो फिर वहां पे पढ़ाई कहाँ पे शुरू हुई तुम्हारी? पढ़ाई मेरी प्रेम धाम आश्रम से शुरू हुई है। दिल्ली से? नहीं नहीं नहीं, यूपी से। ओके, फिर दिल्ली से आगे आश्रम से फिर यूपी भेज दिया? हाँ जी। ये दिल्ली आश्रम वालों ने भेजा था? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली आश्रम वालों उन्होंने फिर तेरे को पढ़ाई के लिए भेज दिया यूपी में? यूपी में। यूपी में कौन सा स्कूल था? यूपी में स्कूल नहीं, यूपी वालों ने मेरे को देहरादून में पढ़ाया। अच्छा, देहरादून में पढ़ा दिया। हाँ जी। ओके, देहरादून में कौन सा स्कूल था? शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। फॉर द ब्लाइंड। वहीं पे हॉस्टल में रहे फिर तुम? हाँ जी। कितना साल रहे वहाँ पे मनीष? हॉस्टल में तो जी मैं 1 साल रहा वहाँ पे। इससे पहले मैं बिजनौर में भी पढ़ा हूँ, वहाँ पे मैं 7 साल रहा। बिजनौर में भी हॉस्टल में रहे तुम 7 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो 7 साल वहीं पे रह के 7 साल, हाँ जी, 7 साल रह के मैंने वहाँ पे 7th क्लास की। 7th क्लास की? हाँ जी। और 7th के बाद फिर कहाँ पे गए? देहरादून से मैंने 8th क्लास की। देहरादून से 8th क्लास की है। फिर उसके बाद जी फिर छुट्टी पड़ गई। फिर अपने ये कोरोना हो गया, हाँ जी। कोविड का दौर आ गया। जब कोविड का दौर चल रहा था तब कहाँ थे तुम? तब आश्रम में था। कहाँ पे? प्रेम धाम आश्रम। प्रेमधाम आश्रम में दिल्ली? नहीं नहीं, नजीबाबाद। नजीबाबाद यूपी में? हाँ जी। मतलब तुम देहरादून से जब कोरोना का काल आया तो तू देहरादून से यूपी आ गया? हाँ जी। देहरादून से यूपी भेज दिया उन्होंने तेरे को? हाँ जी, हाँ जी। आश्रम में शिफ्ट कर दिया दोबारा? हाँ जी। ठीक है। तो प्रेम धाम वाले हैं जो, हाँ जी। तो वहां पे कितना टाइम रहे बेटा फिर? वहाँ पे कुल मिला के मैं वैसे 12 साल रहा हूँ वहाँ पे कुल मिलाकर, पहले का और पीछे का तो अब का? नहीं, अब कितना टाइम लगा के आए हो अभी जो कोरोना के बाद? जब तूने देहरादून छोड़ा, देहरादून छोड़ने के बाद कितना टाइम रहे प्रेम धाम में? प्रेम धाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा। फिर मेरे को अभी इससे पहले मैंने उनसे अपनी मांग की थी। मैंने ये मांग की कि मैं आप लोगों के पास नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग हमें ना दिन रात चर्च में बिठाते थे, हमसे बाइबल पढ़वाते थे, तरह तरह की अपनी हमसे ये सारी चीज़ें करते थे, मारते पीटते थे। तो मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने उनसे मांग की। फिर मेरे को 2022 19 सितंबर को CWC कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में मेरे को लेकर गए वो। फिर मैंने जज से मैंने अब एक स्पीच दी मैंने, और स्पीच में मैंने उनको रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जज महोदय प्लीज़ मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। तो जज महोदय ने कहा अगर इसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको तुम अब इसकी मर्जी के अनुसार छोड़ सकते हो। तो फिर उन्होंने मेरे को दिल्ली फॉर द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में उन्होंने मेरे को भेज दिया। हाँ जी, दिल्ली में मैं 3-4 महीने रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। वैसे मेरे को वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई के मकसद से डाला था, लेकिन कहाँ पे? दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। तो जब मेरा पढ़ाई के मकसद से मेरे को वहाँ पे डाला गया, मैंने बोला कि सर मैं 9th क्लास करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड दिल्ली गवर्नमेंट के बेस में नहीं है, इसलिए तुम नहीं कर सकते हो। ये बात उन्होंने झूठ बोला मेरे को, दिल्ली वालों ने जी। फिर मैंने अपने दोस्तों से कंफर्म किया कि क्या ये बात सच है झूठ है, कि मेरा आधार कार्ड दिल्ली का नहीं है तो इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता 9th में। तो मेरे दोस्तों ने कहा ये तेरे को झूठ बोला उन्होंने, ये तेरा एडमिशन करना नहीं चाहते इसलिए जी। फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं, फिर मैं वहाँ से भी ऐसे ही मेरे को लगा कि ये टाइम पास हो रहा है। फिर मैं ऐसे बोल के फिर मैं वहाँ से छुट्टी, जब दिवाली की छुट्टी पड़ गई, फिर मैं वहाँ से चला गया ग्वालियर में मैं अपने दोस्त के घर रहा। पर दोस्त के घर में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम होती रही, पानी की तरह तरह की प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद मैं दिल्ली बंगला साहिब में गया। फिर दिल्ली बंगला साहिब में 2 रात मैं रुका। एक रात में मतलब उन्होंने मेरे से पैसे लिए, पैसे भी मेरे पास इतने नहीं थे उस समय। मेरे को किसी दोस्त ने जितने पैसे दे रखे थे, एक दिन का पैसा मैंने दे दिया, पर दूसरे दिन का पैसा नहीं दे पाया, जिसके चलते मैं मैंने दिल्ली गुरुद्वारे में रात को मतलब चादर उधर मैंने कुछ नहीं ओढ़ा।
पूरी ठंड में मैंने गुजारा रात। नहीं पैसे किसने लिए रात रहने के लिए? वो जो मालिक होते हैं, किसके? गुरुद जो गुरुद्वारे में मालिक नहीं होते हैं। गुरुद्वारे का मालिक तो भगवान होता है ना। जी नहीं नहीं, जहाँ पे लोग वो। सरां थी, सरां हाँ जी, रहने के लिए कमरे मिलते थे जहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तेरे को वहां कमरा मिला था? कमरा मिला था, पर उन्होंने पैसा लिया था। कितना? उन्होंने एक दिन का 200 रुपये लिया था। तेरे से? हाँ जी। ठीक है। और दूसरे दिन तेरे को पास पैसे नहीं थे? दूसरे दिन पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया? बाहर तो नहीं निकाला, उन्होंने बोला भाई आज तो सो नहीं सकता करके। तो पूरी रात मैंने ठंडी में बैठ करके, फिर मैं बैठा रहा। फिर किसी ने मेरे को देख लिया, फिर उसने कहा अरे ये सोया नहीं है। फिर उसने मेरे को अपनी लोई दी, फिर तब जाके सोया। फिर दूसरे दिन मेरे को किसी ने एड्रेस दिया यहाँ का, फिर मैं आया। फिर तुम जहाँ आ गए? यहाँ का एड्रेस किसने दिया था आपको? नाम नहीं पता मुझे। क्या बोला था उन्होंने, कैसे बताया? उन्होंने बोला, मैंने पहले उनसे पूछा, मैंने कहा आप कोई मेरे को रास्ता बताओ, मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है, कोई रास्ता बताओ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, आप किस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हो, इस तरीके से मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा बेटा हमारे पास तो एक ही साधन है, मैं तेरे को एक एड्रेस दे रहा हूँ, तू अपने लिए कोई संस्था देख। तो मैं फिर उन्होंने कहा मैंने उनसे कहा एड्रेस दे दो मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को एड्रेस दे दिया, मनुक्ता दी सेवा बोल के, और आपका नाम बताया कि गुरप्रीत सर हैं करके। आपका मोबाइल नंबर भी दिया, मैंने आपको फ़ोन भी किया था यहाँ आने से पहले। हो सकता है बेटे जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना गुरुद्वारा के बाहर, कोई उन्होंने पैसा ले लिया हो। गुरुद्वारा में तो सबके लिए जगह खुली होती है, भगवान का दर है, खाने पीने को लंगर लगा होता है। चलो उसी की वजह से, भगवान की दया से तेरे को जहाँ भेज दिया ना बाबा जी ने। यदि तुम उस रात बाहर ना सोते तो हमारे बारे में पता नहीं चलना था। वो एक रास्ता था जहाँ आने का, समझते हो बात? यदि तुम रात को कमरे में सोते तो किसी ने तेरे को पता ही नहीं था, किसी तेरे को एड्रेस नहीं देना था इधर आने का ना। वो सब भगवान ने एक ऐसे रास्ता बनाया था भी। तेरे को पहले बाहर निकाला, बाहर निकाल के सर्दी में सुलाया, फिर सुबह तेरे ऊपर किसी ने तरस खा के तेरे को उसका, अब हमारा जहाँ का एड्रेस भेज दिया, और हम पे तरस खाया भगवान ने, हमें आपकी सेवा में लगा दिया। देखो कितनी बड़ी बात है जी, समझने की बात है। समझते हो ना? सब उसी का किया हुआ है, भगवान की लीला है जी, उस ऊपर वाले की, जिसको हम वाहिगुरु बोलते हैं, तुम भगवान बोलते हो, तुम ईश्वर बोलते हो, है ना? आप मसीह भाई हो ना, तो आपके लिए यीशु जी हैं, हमारे लिए वाहिगुरु जी हैं, किसी के लिए भगवान है, सब एक ही हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया हमें। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भी आप जैसे भगवान जैसे बच्चे की हम सेवा कर पाए। और आगे का सफ़र भी है ना, हम एक साथ गुजारेंगे सारा, ठीक है? जब तक तेरा भाई है ना इधर गुरप्रीत, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? बिल्कुल, ज़िंदगी में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। पता आपकी चिंता कितनी थी इन सर को, गुरप्रीत सर को? ये बोल रहे थे इनको स्टडी करानी है बढ़िया से बढ़िया स्कूल में कहीं पे, बहुत ज़्यादा चिंता थी इनको। मैं राजकुमार को, जितना मर्जी हमारा वो लग जाए, लेकिन बढ़िया से बढ़िया स्टडी इनको करानी है। ऐसे बंदे मिलते हैं कभी? तो आगे भी बेटा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये भगवान का हुक्म है। हमारे रकाबगंज साहब से ना बाबा जी ने तेरे को भेजा है, ठीक है? बाबा नानक के घर से आए हो तुम हमारे लिए, तो हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, ठीक है? तो इस तरह जी देखो पॉल मसीह की जिंदगी का सफ़र किद्दां किवें किवें कित्थों इक्को जिंदा लगे वाले कमरे दे विच, जिथे माँ जम्मण वाली बाहरों जिंदा ला के अपने जिंदगी दे विच अगले सफ़र ते चले गई किसी होर दे नाल, जिवें पॉल ने दस्सिया। उस तो बाद बाप ने भी 3-4 दिन रखा, उन्हें भी स्टेशन ते छड्डता, वो भी अपनी जिंदगी दे अगले सफ़र ते चला गया। फिर उस तो बाद च उत्थों किवें इनू उन्हां लोकां ने चक्किया, किद्दां इनू भीख मंगण वालियां ने किद्दां किद्दां किवें किवें करके कित्थे तो लैके रकाबगंज गुरुद्वारा साहब तक पहुँचदा करता। ते रकाबगंज गुरुद्वारा साहब तो किवें किवें कित्थे कित्थे अज इत्थे पहुँचदा हो गया। साडे कोले आए नूं 5-6 महीने हो गए पॉल नूं। कितना महीना हो गया पॉल? 5वां महीना चल रहा। तो हुण अगले महीने पॉल की 9वीं क्लास की पढ़ाई है जिहड़ी वो BRTC साडे लुधियाणे जिहड़ा स्कूल आ जिहड़ा स्पैशल ब्लाइंड्स बच्चों वास्ते ही आ, उत्थे शुरू होण जा रही है। तो उत्थों के 2 स्टूडेंट राजकुमार ते जसवीर साडे कोले आए ने अज, तां जो इहदी एडमिशन का अगला जिहड़ा कारज असीं कर सकीए। तो इहनूं जिहड़ियां इहदे कोले
ਇਹ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਈਏ 1 2 3 ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਟਨ ਇੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪੌਲ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਪੌਲ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। पॉल ठीक है भाई। पॉल तेरा एक और मैं बात पूछनी थी, जो पॉल मसीह तेरा नाम है, ये बचपने से था या बाद में रखा जब स्कूल में दाखिल कराया? सेंट जोसेफ हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने रखा है। अच्छा, तेरा उससे पहले तेरे को क्या नाम से पुकारते थे? जी वो तो मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है। जो ये तेरा नाम है पॉल मसीह, ये सेंट जोसेफ स्कूल जो कहाँ का है? यूपी का है। यूपी में, जहाँ पे तूने पहले स्टडी शुरू किया, जो पहली क्लास में भर्ती हुए थे ब्रेल की, वहाँ पे तेरा नाम उन्होंने रखा पॉल मसीह। ठीक है भाई। तो तू जब से तेरे को लगा, समझ आने लगा, तब से तेरा नाम पॉल मसीह है? ठीक है। तो बचपने का तेरा नाम तेरे को याद नहीं है? ठीक है। चलो, साडा पॉल सिंह मसीह अगला सफ़र अपनी जिंदगी का अपनी यादां नाल, चंगियां यादां नाल बतीत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, तुहाडा, जसवीर जी तुहाडा, सत श्री अकाल। राजकुमार ते जसवीर हुण तुहाडी जिम्मेवारी है, ठीक है। अज तो बाद तुसीं देखो, एक ब्लाइंड दी गल समझ सकदा बेहतर तरीके नाल, क्योंकि तुसीं खुद अपनी लाइफ नूं इस तरीके नाल, है ना, हुण तुहानूं देख के कोई नहीं कह सकदा तुसीं ब्लाइंड हो, है ना। तुहाडे काम जॉब करदे हो, तुसीं स्टडी करदे हो, ते इहनूं भी तुसीं, मैं उम्मीद करदा, अपने वांग एक चंगा इंसान बनने विच साथ देओगे। ठीक है पॉल। इन्हां चों जसवीर कौन है, राजकुमार कौन है? राजकुमार भैया तो ये है। जी है, और जे जसवीर भैया है मेरे पास खड़े हैं, ठीक है। तो इन्हां दा नंबर भी सेव कर ला अपने फोन दे विच, ते इहनूं फोन किवें यूज़ करना, एक तुहाडे लई फोन बेस्ट किहड़ा वा जिहड़ा इहनूं ज़्यादा ईजी रवे जिहड़ा चलाउणा, ਉਹ फोन कोई है स्पैशल फोन आउंदा कोई तुहाडा? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਟੱਚ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਟੱਚ ਫੋਨ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਟੌਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਟ ਨੋਟ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਟੱਚ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੌਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ कंप्यूटर सीखा है कोई? हाँ जी, थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर पे। टाइपिंग कर लेते हो? चलो, वहाँ पे जाओगे, राजकुमार जसवीर भैया तेरे को पूरी ट्रेनिंग दिलाएंगे, कंप्यूटर सीख लेना, फिर तेरे को हम लैपटॉप ले देंगे, ठीक है। और पढ़ाई के लिए बस पूरा मेहनत करना है, ठीक है बेटा। जी ला के पढ़ना है, दिन रात पढ़ाई करना है बस। पढ़ाई करने वाले को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बताओ? सबसे बड़ी परेशानी ज्यादा पढ़ने वाले को क्या होती है? ज्यादा पढ़ने वाले को, हाँ, ज्यादा पढ़ने वाले को बहुत सारी दिक्कत होती हैं। जैसे कभी कभी वो शोर शराबे में नहीं पढ़ पाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आंखों की, है ना। ज्यादा पढ़ोगे आंखें चली जाएंगी, ज्यादा पढ़ोगे तो भगवान ने तेरे को तो पहले ही मन की आंख दे रखी है ना। तेरी आंख तो कभी ऐनक नहीं लगनी, खराब होनी नहीं है आंख, है ना।
तो मैं घर पे जब झूठ बोलता था पढ़ने के लिए, मैं बोलता था मेरी आंखें दुखती है, मैं पढ़ नहीं सकता। अब तेरे को तो भगवान ने ये आंख दी है मन वाली, है ना, तेरे को ये दिक्कत नहीं आएगी। जब तक तू सोता नहीं है तब तक तू पढ़ सकता है, और दिन रात पढ़ सकता है। तो यही मेहनत करनी है जाकर वहाँ। और फाइनेंशियली और जहाँ कोई और फैमिली की, वो हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा फैमिली हैं। अभी तुम 5 महीने से इधर देख रहे हो, हर एक बंदा तेरे को जो जानता है इधर फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा है ना सब। कोई परेशानी आई इधर 5 महीने में? तो अभी आगे भी नहीं आएगी। राजकुमार और जसवीर भाई और इसके जैसे और बहुत से दोस्त बनेंगे तेरे वहाँ। हम फैमिली मेंबर ही हैं अब सारे। ठीक है, हम एक परिवार है, टेंशन नहीं लेने का बस। ठीक है बेटा? हाँ, आगे जाकर अपनी जिंदगी का एक अच्छा मकसद बनाना है, जिंदगी में कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। ठीक है, इंसान बनकर पैदा हुए हो तो वो हमारा कर्तव्य है, जो इंसान बनकर जो इस दुनिया के लिए भगवान ने हमें भेजा है वो हमने पूरा करना है। और तुम किसी वजह से कम नहीं हो किसी से। ठीक है? हाँ, टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू।